हाँ? Okay. नमो वितरागाय, Namo Vitragay, नमो अरिहंताणम, Namo Harihantanam, नमो सिद्धाणम, Namo Siddhanam, नमो आयरीयाणम, Namo Ayariyanam, नमो वज्रायाणम, Namo Vajjayanam, नमो लोय सव साहुणम, Namo Loye Sava Sahunam, ऐसो पंचन मुक्कारो, Aiso Panchanamukkaro, तव पावपणासनो, Sava Pava Panasano, मंगलाणं च सौवेसिं, Mangalanam Cha Sabvesim, परमं हवै मंगलम्। Padmam Havai Mangalam. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमः शिवाय, Om Namah Shivaya. जय सच्चिदानंद, Jai Sachitanand. जय सच्चिदानंद। Jai Sach. Would you like to ask anything, Doctor? No specific question except the one how to progress in this path fast. See one thing. This path is what basically the way when you are married, the way you join an institution, you became a doctor. तो कैसे आपने कॉलेज को सिंसियर रहकर पढ़ाई की, ठीक है, तो उसी तरह से आपको यहाँ कहाँ सिंसियर रहना है वो आपको समझ लेना है. हियर फॉलोइंग द आज्ञास इज द मेजर ऑफ योर सिंसियरिटी, and the following of agna is not by means of any activity but to live with an inner understanding of the two viewpoints. आप समझे? In any activity, Yeah. doing part is of mind, speech, body. यानी भारती में सब करते रहते हैं, वो व्यवस्थित की प्रेरणा से भारती में करते हैं, और आप मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शुद्धात्मा दृष्टि से, यानी विद दैट बिलीव दैट आई एम शुद्धात्मा, आप भारती बहन क्या करते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको आप देखते रहते हैं. What it means, जैसे आप डॉक्टर बने हैं, when you fulfill your duty as doctor, you are a doctor, you become a doctor, correct? Yes. The same way आप शुद्धात्मा हुए हैं, तो what is your duty as शुद्धात्मा, तो भारती में क्या करते हैं उनको आपको देखते रहना है. One seeing is with the five senses and the other seeing is with the pure soul vision. वो pure soul vision से देखना, यानी you see with that separateness कि भारती बहन करते हैं और आप शुद्धात्मा उनको देखते हैं, जानते हैं. आप समझे? So none of the activities go without your surveillance, without your vigilance. तो उससे क्या होगा कि भारती बहन जो कुछ भी करते हैं वो आपकी नजर से बाहर नहीं होगा. So you will be able to know, understand and correct all the mistakes of Bharti Behan. So that's how Bharti Behan will become perfect. उनका व्यवहार परफेक्ट होता जाता है. And what is the measure of that perfection? भारती बहन से किसी कोई हर्ट नहीं होते हैं. So that's how when you don't understand what Bharti Behan is doing, that's how you raise questions in the satsang and get the understanding that in this situation what you should be doing. तो वो समझ आने से, with that understanding you start living and correcting Bharti Behan. Because Bharti Behan is just an activity, bunch of activity.
she does based on her previous beliefs. तो प्रतिक्रमण करने से पहले की बिलीफ मिट जाती है. You wipe out the past beliefs and you reinstate or reinstall the new belief. आज की बिलीफ जो 9 कलम से जीना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, आप समझे? So eventually that's going to happen. What is happening is because of the past impression and beliefs with which Bhartiben has come in her ignorant state. Okay. तो आज की विजिलेंस से with your observation today आप पता चलेगा कि भारतीबेन कहाँ गलत करते हैं, कहाँ 9 कलम ब्रेक करते हैं वगैरह वगैरह, कहाँ किसी को दुख होता है. So we will keep correcting her because that correction is not possible by Bhartiben. Okay. जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी अपने आप चलती नहीं है, आपको चलाना पड़ता है. यानी गाड़ी चलाने का ज्ञान आपके पास है, द ड्राइवर. So you become the driving force for Bhartiben and for her correction. At the same time you remain as pure soul. मैं शुद्धात्मा हूँ. आप समझे? इसीलिए by relative viewpoint I am Bhartiben means you keep correcting Bhartiben by relative viewpoint, and by real viewpoint you keep watching Bhartiben. Okay. What a perfect equation Dada has given. That's true. Yeah. Mostly the only before I used to think somebody else is the cause for all our पूरा अपना सफरिंग का दूसरे लोग कॉज है सोचते थे, मगर अब तो वो बिलीफ चले गया. डूअरशिप हैज गॉन, एट्रीब्यूटिंग डूअरशिप दूसरों को और अपने आप को. लेकिन अभी क्या पता चला है, although others were doing, but the instrumental cause was within me, within Bhartiben. That was inspiring others to do things with Bhartiben. आप समझे? नहीं, ये नहीं समझी मैं. Explain again. I feel like doing anything with you is because of your causes inside. दादा भगवान के दादा भगवान के पास जो आते थे वो सब भूल जाते थे. मैं ये करूंगा वो करूंगा. One time one man was very adamant and he thought that I am very knowledgeable about the spiritual science and all that. So I am going to show Dadaji what is what and all that. तो वो दादा के पास आए, he was not able to utter a word. दादा ने कहा कुछ बोलना है? कुछ नहीं, ये बात है. और हमें बोल के जाते हैं वैसा वैसा, या हमारे साथ कुछ the way they deal with us, all those inspiration is because of the causes which are inside within your mind speech body. Do you understand? Okay, we are the cause. Not we means Bhartiben is the cause. Understand that. We करेंगे तो मेरे पर ले लेंगे. जो I am Shuddhatma, I am separate from Bhartiben. Correct? Yeah. That's what. All happening is in Bhartiben, is with Bhartiben, and all knowing is with you as Shuddhatma. Okay. मैं सानी तेमा શું રાખ્યું છે સારું સારું? Admit करो जो. Did you understand, Bhartiben? Yeah, that I'm the one. मेरे से जो कुछ हो रहा, I'm the one who caused it in previous births. Remember, when you say I means who? Bhartiben. Okay. Yes, it is very important. The moment you say I, it will get connected with your I. But then to clearly have a demarcation, you better utter your name when you are trying to understand. Okay. Because Bhartiben feels, Bhartiben does and Bhartiben feels, and you as pure soul, you see and observe what Bhartiben do and what Bhartiben feels. आप समझे? दूसरे लोग जो कुछ भी कर रहे वो भारती बहन has
कॉज क्रिएट करे पहले। हाँ, यस, वो मैग्नेटिक इफेक्ट जैसी है। अंदर अंदर ओके। पड़े हैं जिसके कारण बाहर अट्रैक्शन रिपल्शन होता है लोगों से। अच्छा और ये अच्छा ध्यान अच्छा। से आप देखेंगे और उसको अंदर से भारती बहन को कनेक्ट कर देंगे तो यू आर बैलेंसिंग और न्यूट्रलाइजिंग दोस चार्जेस, और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ओके तो बाहर कोई भी आएगा आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। जैसे दादा भगवान के पास आके वो कुछ नहीं कर पाए, ऐसा है। लेकिन जितना अकाउंट है उतनी अकाउंटेबिलिटी आती है और उसका आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है। लेकिन विद द प्योर सोल विजन, शुद्धात्मा दृष्टि के साथ, भारती बहन विल बी एबल टू हैंडल एनी अकाउंट। ओके। कल इधर एक एक्सीडेंट हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन का स्कूल बस से। हाँ हाँ। एक्सीडेंट होके एक आदमी ही डाइड ऑन द स्पॉट। हम्म। सो इसका भी अभी मेनी कॉजेस। आउटसाइडर? आउटसाइड आउटसाइड ओनली, आउटसाइड ऑन द रोड। या ओकाड़ा पर्सन। नॉट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन? तो ये ऑर्गेनाइजेशन का बस, हाँ, ओके। स्कूल बस वाज गोइंग टेकिंग चिल्ड्रन। हाँ, तो उसका कॉजेस किसका कॉज होगा? वो ऑर्गेनाइजेशन का कॉज होगा, इंडिविजुअल का होगा, कैसा होगा? देखो, ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, लेकिन उनका जो हेड होते हैं ना, उनके ऊपर आता है इनडायरेक्टली। ऑल्दो ही हैजंट डन इट, ही हैवंट डन इट, लेकिन उनके ऊपर आता है। लेकिन बिकॉज in the forefront it is organization, but behind it is individual who is there. So the individual take the responsibility of what has happened and do whatever is the compensation is needed is fulfilled by the organization. ऑर्गेनाइजेशन का हेड का कॉज है क्या वो? नहीं तो कलेक्टिव कॉज है? नहीं, वो कलेक्टिव कॉज जो भी है, मेन इट, ऐसे बोलते हैं ना, इफ द कंट्री विन्स, the prime minister or the commander in chief takes the responsibility of winning, and if they lose, the commander in chief bears the responsibility of losing. आप समझे? So in a way नहीं। you can say, देखिए, आपके बच्चे ठीक है तो डैडी मम्मी को जाता है ना ब्लेम। अगर आपके बच्चे ठीक नहीं है तो ब्लेम डैडी मम्मी आप पर ही जाता है। सो अगर आपके बच्चे ब्राइट निकलते हैं तो इसके डैडी मम्मी कौन है, और आपके बच्चे बुरे निकलते हैं तो वो बोलते हैं ये डैडी मम्मी कौन है, ऐसा करके। समझ गए? नाउ इट्स, आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं शरण जी, जस्ट 5 minutes। ओके ओके। जैसे देखिए, अगर मैं कुछ करता हूं एज दीपक आनंद जी, रिस्पॉन्सिबल, वो हम थोड़ा थोड़ा क्विकली एनालाइज करते हैं। पीपल सी मी एज इंडियन सिटीजन, तो मैं कहीं कुछ भी करूंगा तो दे विल से इंडियंस आर लाइक दिस। आप समझे? समझे। See me as Indian. Okay. Now, someone knows that I am from Gujarat. He will put all the blame on Gujaratis. All these Gujarati people are like that. Correct? Yeah. Now people, they come to know that, oh, I am from Maharashtra and Bombay. They will blame that all these Bombay people are like that. Acha. Then, my last name is Mystery. All mysteries are like that. Now I am connected with Dada Bhagwan movement. Yeah. People will say that, oh, ये Dada Bhagwan वाले सब ऐसे ही है. Now one more thing in Dada Bhagwan, I am an Aptaputra. तो बोलेंगे ये सब Aptaputra ऐसे है.
आप समझे? Just as an individual, Yeah. not just an individual. I represent so many things, so many agencies, so many places, so many country. आप समझे? And finally, Yeah. इन माता पिता ने कुछ संस्कार नहीं दिए, इसके लिए he is a duffer like this. आप समझे? So if I do anything when I have this thing in my mind, so that will stop me doing anything wrong naturally. आप समझे? Okay. How you have to prepare yourself. Now अभी आप ज्ञानी महात्मा है, तो आपको you have to perform, come what may. So with this inner conviction and your decision that I will not cross the boundaries of Dada's principle, it will always help you remain perfect. It will always be performing. आप समझे? वो conviction नहीं आता है, वो decision नहीं आता है, तो आप ऐसे ही रहे. आप समझे? So Okay. that's how you correct your व्यवहार. That is Bhartiben's व्यवहार. Okay. Right. जय सच्चिदानंद. By affirming. Jai Sachidanand. Thank you. महेशानंद जी, sorry. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે બોલીએ. હા તો હું રેડી છું. શું કરવાનું છે આજે? મેં વાંચ્યો નથી SMS. તમારો 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 સત્સંગ છે આજે, તમે જોયું હા પણ ધ્યાન બહાર જતું રહ્યું છે આજે. કઈ વાંધો નહીં, તમે આવી સરસ. બીજકુમાર. હા ઘરે જ હતો. બોલીએ. હિન્દીમાં છે? Yes, it is Hindi. ઓકે ઓકે સોરી. ઓકે. બોલાવાના છે? हाँ, चलो आप आए हैं तो हमने बुला लिए थे, वैसे भी आप बुलाइए वापस, दोहराइए. कुमार फॉलो प्लीज. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो वज्रायाणम. नमो वज्रायाणम. नमो लोए सौव साहुणम. नमो लोए सौव साहुणम. ऐसो पंच नमुक्कारो. ऐसो पंच नमुक्कारो. सौव पावपणासणो. सौव पावपणासणो. मंगलाणं च सौवेसी. मंगलाणं च सौवेसिं. पडवं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. ब्रिज कुमार बोलिए. आत्मा और मोक्ष के बीच कितनी दूरी? क्वेश्चन मार्क है. सिर्फ अंतराय जितनी ही है. ये कौन सा अंतराय? लास्ट ये अंतराय की कौन सा अंतराय है? इसमें सिर्फ लिखा है तो अंतराय. अंतराय कौन सा है? सिर्फ अंतराय है आपका. ये अंतराय की किताब है ना, उसमें पीछे था सिर्फ अंतराय जितनी ही. हाँ. कितनी है? मोक्ष और आत्मा बीच में अंतराय कितना है? आत्मा के और मोक्ष के बीच कितनी दूरी? सिर्फ दूरी जितनी ही. कितनी दूरी है और कितना अंतराय है? यहाँ में कर्मों के अंतराय का होगा. हाँ हाँ वही बताता हूँ. क्वेश्चन मेरे समझ लूँ ना पहला. हाँ. आत्मा और मोक्ष में कितनी दूरी? हाँ. कितना दूर है? आत्मा और मोक्ष के बीच में दूरी क्वेश्चन मार्क है. दूरी. हाँ. और बस अंतराय. हाँ अंतराय.
हाँ, आत्मा और मोक्ष में बीच में कुछ दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। आत्मा वही मोक्ष स्वरूप है, मगर आत्मा जानने के बाद मोक्ष दूर नहीं है। अच्छा। दादा भगवान ने बताया 2 प्रकार का मोक्ष। एक जीते जी इधर मोक्ष का अनुभव, दुख का अभाव और आंतरिक सुख का सद्भाव, और दूसरा मोक्ष आत्यंतिक मोक्ष, यानी कि छेल्ला अवतार होता है ना महावीर भगवान का, राम भगवान का, जो निर्वाण होता है, केवड़ी भगवंतों का केवल ज्ञान होके वो लास्ट भाव में मोक्ष जाते। ऐसे एग्जाम्पल है सबका, केवड़ी भगवंतों का, तीर्थंकर भगवंतों का, ऐसा सब राम भगवान और सब जो भगवान जो लास्ट भाव में मोक्ष से गए ने, यानी कि सिद्ध गति में गए, फिर से उसको अवतार नहीं हुआ, वो लास्ट डेस्टिनेशन है। दादा भगवान ने क्या बताया, आपने जो ये ज्ञान लिया आत्मा का, यानी कि मैं कौन हूँ, शुद्धात्मा हम है और हम 5 आज्ञा का पालन करते हैं, ये ज्ञान अपने ये पहला मोक्ष प्राप्त किया। एग्जाम्पल देते थे, ये पहला मोक्ष प्राप्त किया, बाद में आत्यंतिक मोक्ष 2-4 भाव में हो जाएगा। ऐसे तो एक ही अवतार का है, एक अवतार और महाविद्य क्षेत्र में लेना पड़ता है कंपल्सरी, यानी एक क्षेत्र से हम सीधे सिद्ध गति में नहीं जा सकते, तो वाया महाविद्य क्षेत्र में मोक्ष से जाने की सुविधा है। तो जैसे एग्जाम्पल देते थे दादा भगवान, जैसे हमें अमेरिका जाना है, बराबर, तो पहले क्या करना पड़ता है, हमें वीजा की प्राप्ति करनी पड़ती है। विदाउट वीजा वी कैन नॉट गो देयर, हम जा नहीं सकते। आत्मा के और मोक्ष के बीच कितनी दूरी है, सिर्फ अंतराय जितनी है, सिर्फ अंतराय जितनी ही आश्चर्य है। हाँ, तो ऐसे तो बहुत दूरी है और ज्ञान के प्राप्त कुछ दूरी नहीं है। अंतरा यानी कि हमने जो पिछले भव में आतरा डाला कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, मोक्ष की क्या जरूरत है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के होते होंगे, मोक्ष आते तो हम नहीं जाएंगे, संसार का सुख ही सही है, वो सभी मोक्ष के विरुद्ध हम बोलते हैं, आत्मा के विरुद्ध हम बोलते कि सभी क्रिया आत्मा और मोक्ष के विरुद्ध हम चलते, उसको अंतराय बोलते। तो सही है, कर्म जो हम बीज बोए है जो गलत, वो अंतराय रूप जरूर है, मगर ज्ञानी पुरुष प्राप्त होने के बाद, दादा भगवान यह क्रम विज्ञान प्राप्त होने के बाद सभी अंतराय मोक्ष जाने के लिए टूट जाते हैं। मोक्ष जाने में अंतराय बाधक कौन करता है, मत के कारण अज्ञान भी समझ में नहीं आता, ज्ञान की तो बात ही जाने दीजिए। तो ऐसा तो बहुत सारी चीज है जो बाधक है, जो दादा भगवान ने जो बाधक है उसका पूरा लिस्ट बनाया है, मगर वो सभी बाधक सब मत ये 5 आज्ञा से टूट जाता है। सभी अंतराय बाधक हमारा सभी बुद्धि, मन, डिस्चार्ज, अहंकार सब निपट जाता है। इसलिए दादा भगवान ने 5 आज्ञा की बताए। भगवान ने सबसे बड़ा अंतराय ज्ञानांतराय को कहा है। लक्ष्मी के और दान के अंतराय टूट सकते, लेकिन ज्ञान के अंतराय जल्दी आसानी से नहीं टूटते। तो ये ज्ञानांतराय तो दादा भगवान की कृपा से हम उस ज्ञान की, अक्रम विज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान को जो अंतराय डालने वाले हमारे कर्म है, ज्ञान के जो वो रिवर्स वाले, यानी कि वो अंतराय ज्ञान में आवरण लाने वाले हैं, वो सभी अंतराय ये ज्ञान की प्राप्ति से निपट जाता है, निकल जाता है। सबसे बड़ा अंतराय ज्ञानांतराय, ज्ञान को आतरा डालने वाला, ज्ञान को रुकावट करने वाला। हाँ जी, समझ में आया? हाँ हाँ। और लक्ष्मी और दान के अंतराय तो टूट सकते हैं,
वो तो मालूम है आपको। हाँ हाँ मगर ये ज्ञानांतर है, ज्ञान में जो हम गलत बोले हैं, गलत चले हैं, इसलिए भव का बीज कर्म के बोए है। हमें ये ज्ञान की क्या जरूरत है, हम जो करते वही सही है। ज्ञान हम उसको मानते नहीं है। ज्ञान का जो हम ऑपोजिट बोले उसको अंतराय बोलते। जैसे दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया ने, कोई बेगर है, भिखारी है, तो आपका फ्रेंड उसको 10 रुपया देने चाहता है या 100 की नोट देने चाहते हैं, मगर आप फ्रेंड को बोलते हैं ने, जाने दो ना, क्यों, ये तो जुआ खेलेंगे, वो कुछ भी नॉन वेज खाएंगे, दारू पिएगे, तो 100 की नोट मत दो। तो भाई बहन का उदय कर्म था उसको हेल्प करने के लिए, मगर आपने मना किया फ्रेंड को, तो आंतरा डाला। जैसे ज्ञान में भी आंतरा डालते हैं, ये जाने दो ना, ये तो ये ज्ञान व्यान की बात हमें समझ में नहीं आता है, ये ज्ञानी पुरुष का बात हमें जतते नहीं है और हम मानते ही नहीं है उनको। ऐसे आंतरा बहुत डाले हैं हमने भी। और आया और सेंटेंस, स्वयं का अनिश्चय वही अंतराय। फिर वो अंदर जाते हम, ये स्थूल एग्जाम्पल दिया, वो बेगर का, भिखारी का दिया ने, दादा भगवान ने दिया था। ये स्वयं का अनिश्चय वही अंतराय, निश्चय करने से अंतराय टूट जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा खुद का अनिश्चय, निश्चय कभी हुआ ही नहीं है और निश्चय करते भी नहीं है, पर निश्चय करने से अंतराय टूट जाते। मुझे ऐसा ज्ञानी पुरुष मिले, दादा भगवान ने बताया था, आपने पूर्व भव में आपने महात्माओं ने कितना भी भाव किया था, निश्चय किया था कि मुझे आत्मज्ञानी पुरुष, सजीवन मूर्ति ऐसे मिले, प्योर पुरुष जो ऐसे निस्दिन आत्मा में रहते हैं, उसके भिखारीपना पूरा निपट गया है। कोई लालसा नहीं है संसार की, कोई भी लालच भुगतने की नहीं है। ऐसे प्योर पुरुष हमें उनकी प्राप्ति हो, ऐसा पक्का निश्चय किया था और भावना की थी। तो भावना का फल ये अवतार में हमें ज्ञानी पुरुष और अक्रम विज्ञान की प्राप्ति हुई। तो स्वयं का निश्चय वही अंतराय है, वो सब बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दादा भगवान ने नहीं बताया एक सेंटेंस में, सभी रोगों का मूल मुआ तू है। अच्छा, तू नहीं, हम है सभी। वो गुजराती का उसमें क्या है, बधानो, अभी हिंदी में बात करता हूँ, गुजराती भूल जाता हूँ। सभी रोग, अच्छा, सभी गलतियों का मूड यानी कि रूट कॉज तू खुद ही है, मैं खुद ही हूँ। वो सामने वाले को तू बोलते और मैं यानी कि हम खुद, महेश भाई। तो ये मैं इनके साथ कंपेयर करने के लिए बोलता हूँ। हम सभी रोगों का मूल मुआ यानी कि गुजराती शब्द है, उसका हिंदी इंग्लिश नहीं होता है। मोया बोलते हैं। मुआ यानी कि, हाँ, तो अभी लगता है जीता है, मगर सब ऐसे अधमुआ हो गया, वो मर्दा जैसा हो गया, डेड बॉडी जैसा हो गया, मगर इसमें जीव है। जैसे स्नैक है तो बहुत मार रहा, बहुत मारा तो ऐसे पड़ा रहेगा, मगर अंदर सहज उसकी पूंछ हिलेगी ना, मुंह हिलेगा तो शरीर हिलेगा, तो हम नहीं बोलते अभी जिंदा है, वो मर्दाल नहीं हुआ। ये सभी गलतियों का जो रूट कॉज है हम खुद है। ऐसा दादा भगवान, क्यों, हमारा अनिश्चय है। अभी कभी भी ये गलतियों हमें ऊपर इतना आवरण लाई है, अपने इतना गलतियों से भरपेट, इतना डिस्चार्ज जो भाव है, वो जो कर्म का फल देने वाला कर्म ऐसे करके लाए हैं, अनिश्चय वाला कर्म करके लाए हैं। तो कभी निश्चय नहीं किया
मगर कोक अवतार में ऐसा पक्का निश्चय किया। अवतारों तो बहुत हो गए ना अपने। हाँ हाँ दादा भगवान ने बताया कोक अवतार में आपने इतना भावना की होगी कि मुझे प्योर पुरुष मिले, मुझे खुद प्योर होना है उनके निमित्त से, मुझे ये मोक्ष मार्ग चाहिए, आत्मज्ञानी पुरुष चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। एक कोक अवतार में आपने इतना बड़ा निश्चय किया होगा, स्वयं का ऐसा पक्का निश्चय किया था, और स्वयं का अनिश्चय भी किया बहुत अवतारों में। स्वयं मैंने कि आत्मा, कभी तो हम आत्मा में नहीं मानते, आत्मा वो तो सब लोग बोलते, मगर सही हम मानते नहीं और समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आत्मा के लिए जो विरुद्ध बोलते हम ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कि जो भी आत्मज्ञानी पुरुष श्रीमद राजचंद्र हो गए, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष के लिए हम उधर उधर बोलते, गलत बोलते, तो अपना खुद का निश्चय में अंतराय डालते हम। आत्मज्ञानी पुरुष के आत्मज्ञान की बात होती है, उसमें भी हम ऐसे बोल नहीं मानते, वो हम्बक है सब बात, जो भी कुछ है ये ढोंग है, ऐसा है क्या है। तो ऐसे बोल वो इतना आंतरा डाला, अंतराय डाला, रुकावट की खुद ने। कोई बोले कि भाई ये ज्ञानी पुरुष आए हैं श्रीमद राजचंद्र जैसे बड़े आत्मज्ञानी, नहीं नहीं वो तो जाना नहीं चाहिए, उसमें कोई बरकत नहीं है, वो ठिकाना नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ऐसे बोल के हम खुद अंतराय, हमें ज्ञानी पुरुष मिलने सामने से आवे तो भी फिर हमें ऐसा अंतराय डालते, वो इकट्ठा नहीं होगा, पहचान नहीं पाएंगे। तो दादा, हाँ ये सब बात है। निश्चय बल मोक्ष के लिए जाता है और अनिश्चय से ही यह सब अटका हुआ है। वो मोक्ष के लिए निश्चय बल चाहिए और अनिश्चय उसमें सब रुकावट आती है, अटका हुआ है। हम चेतन और अंतराय निश्चेतन, तो अंत में चेतन का ही जय विजय होता है। इसलिए चेतन का ही विजय होता है। और अंतराय निश्चेतन और चेतन की बात है, निश्चेतन और चेतन की बात है, और सौ अंत में चेतन का ही विजय होता है। देखिए कितना भी 100 टन कितने भी आवे ऐसा संजोग हो, उसमें चेतन का ही विजय होता है। और अंतराय निश्चेतन बताया। तो बात ऐसी थी, आत्मा और मोक्ष में ऐसे बहुत अंतर है, मगर ज्ञानी पुरुष, प्रगट ज्ञानी पुरुष हमें खुद का पहचान करे, हम कौन है। हम शुद्ध चेतन आत्मा है, अनंत ज्ञान वाला है, अकर्ता है हम, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है हम, परमानंद स्वभाव वाला है हम। तो ये ज्ञानी पुरुष से हमें खुद का परिचय हुए, हम कौन है। फिर सभी अंतराय, ज्ञानी पुरुष मिलने से ही अंतराय टूट जाता है ज्ञान का, और फिर पक्का निश्चय, यानी कि ऐसा निश्चय, दृढ़पणे निश्चय होता है, तभी मोक्ष नजदीक है। इसलिए दादा नहीं बताया 5 आज्ञा का पक्का निश्चय होगा तो मोक्ष 2-3 भव में हो जाएगा। अच्छा, कौन सी? 5 ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 आज्ञा का निश्चय पक्का होगा। और ज्ञान नहीं लिया तो कोई बात नहीं है। दादा भगवान ने जो बताया कि ये भोगवे उसकी भूल, हुआ सो न्याय, चक्राव टालिए, वो एडजस्ट एवरीवेयर, एक भी वाक्य मेरा पकड़ लेंगे, वो जैसा है वैसा पूरी जिंदगी निभावे, यानी कि वही सेंटेंस पे चले, तो भी उसका मोक्ष नजदीक है। बहुत बड़ी बात है दादा भगवान का जो वचन बल है, वाणी है, तो आत्मा प्राप्त करने के बाद मोक्ष नजदीक है, ऐसी सब बात है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। तो हमारे
ज्ञान के अंतराल तो टूट गए मतलब है ना। हाँ, अंतराय टूट गए, मगर भरेला माल पड़ा है ना हाँ भरपेट। हाँ वो आज्ञा पालन नहीं करने देते, अपना मन बुद्धि चित्त डिस्चार्ज हाँ अहंकार, वो सबसे बड़ा अंतराय है। पूर्व भव में जो बीज बोए हाँ कर्म खपाने का बाकी है, हम्म, दादा भगवान को तो सब कर्मों खपा के ज्ञान हुआ था, और अपने को सभी कर्म एज इट इज रखे, सिर्फ ज्ञानांतराय तोड़ा। अच्छा ज्ञान जो प्राप्ति होने होने में जो अंतराय था, हाँ हाँ यानी कि अपना जो बोलते ने 3 प्रकार का कर्म, पानी, वराड़ और बर्फ। तो वराड़ और पानी जो हवा में उड़ जाता है, वो पर निकाचित कर्म, यानी कि बर्फ जैसा हो गया, वो कर्म तो आएगा ने। जैसे दादा भगवान को फ्रैक्चर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जो कर्म उनने ने भी पाया। हमेरा भी जो अभी जो बचपन से अभी तक बहुत दिक्कत आई होगी ने, हाँ हाँ कि नहीं बीमारी भी आई होगी, हाँ और कहाँ कहाँ इतना अपमान भी हुआ, घाट धंधे में घाटा भी हुआ होगा, हाँ बच्ची के लिए भी कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, होती है, वो सब आप जानते हैं। हाँ यानी कि समाज में सामाजिक जो उलझने आती है, हाँ ये हाँ सब उदय कर्म तो आएगा ने। वो कर्म जो निकाजित कर्म खड़े हैं अभी, ज्ञानी को भगवान महावीर को भी जो बरु डाला था ना गोवाड़िया ने, हाँ हाँ उनका कर्म खपाने का इतना बाकी था। हम्म, महापुरुषों का भी कर्म खपाने का बाकी होता है। राम भगवान को भी वनवास जाना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी लड़ाई में निमित्त बनने पड़ा, हम्म, और वो उनको तीर लगा ये पग पाँव में है, नीचे के भाग, वो भी उनका कर्म का फल ही था। हम्म, तो वो निकाचित कर्म बोलते हैं। यानी कि और दूसरा कर्म जो है, मन में कुछ उलझने आती है, बुद्धि गलत डिसीजन लेते, अहंकार में मैं करता हूँ, वो आ जाता है ना अभी। हाँ तो दादा भगवान ने अकर्ता बनाया, मगर सामने वाला करता दिखता है ना हमें, मन बिगड़ता है ना, हम्म, बुद्धि बिगड़ती है ना, वो भरेला माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना कर्म खपाया। वो अभी कर्म खपाने की ते दुकान बोलते हैं। ब्रिज कुमार इटसेल्फ, महेश भाई इटसेल्फ कर्म खपाने की दुकान। हाँ हाँ समझ गया दुकान में बोलते हैं ना, हाँ जो भाई आपका पैसा लेने का है कि देने का है, हम्म, हिसाब जो बाकी रहते हैं ना, उधारी का भी धंधा में रखते हैं हम। माल बिना बिकता नहीं है। करियाना की दुकान होते है, खांड चाय हो जो भी मसाला, जो भी कुछ उधार देना पड़ता है, नहीं तो धंधा नहीं चलता है। हम्म, लेन देन का हिसाब बाकी है अभी। दादा भगवान को जो लेन देन का हीराबा था, उनके मदर था, भाई थे, भाभी थे, तो भाभी के साथ बहुत लेन देन का हिसाब था, भाई के साथ भी था। मगर दादा भगवान ने उनका आदर्श जीवन, दादा भगवान कैसे जी गए, हम्म, कैसे भी लेन देन का वो आया सब, मगर उन्होंने हीराबा के साथ भी पूरे जीवन में, मदर के साथ भी उनको किसी भी तरह से दुख नहीं दिया, भाई को भी दुख नहीं दिया। एक बार प्रसंग बना था, वो घर से भाग गए थे, फिर वो भाई को लेटर लिखा और माफी भी मांगा था। भूल हो जाती थी बचपन में, मदर की भी माफी मांगते थे, हीराबा की बोलते कि भाई चलो, आपको कुछ दुख तो नहीं हुआ ना। ऐसा हम्म, सबके साथ, महात्मा के भी साथ। और आउटसाइड के लोग बोलते थे कि आप दादा भगवान कहलाते हैं, वो ऐसा है तैसा है, आप तो साधु वेश नहीं पहना, संसारी वेश है, और ऐसा है, आप भगवान कहलाते। भाई आपको लगता है हम भगवान नहीं है? जो आपको दुख हुआ तो हमें क्षमा हम मांग लेते, वो छूट जाते थे संभाव से, ऐसे समा ऐसे लेके आए थे ज्ञान, और सामने वालों को निमित और निर्दोष समझते थे। हम जरूर निर्दोष दृष्टि प्राप्त हो गई हमें भी, मगर अपने जो उतरे पूर्व का अभिप्राय है, प्रेजुडिस माइंड जो हम लेके आए, इसने ही ऐसा किया, इसने ही जानबूझ के किया। ये अज्ञान, यानी कि भरेला माल रूपी अज्ञान खड़ा है,
मूड अज्ञान गया, मैं ब्रिज कुमार था, हकीकत में वो ज्ञाना अंतराय, दर्शनांतराय दूर हो गया और सभी जो 8 कर्म भस्मीभूत हो गए। ऐसे ये ज्ञान से सभी अंतराय दूर हो गए, मगर भरेला माल बाकी है। वो खपाने के बाद मोक्ष तो बहुत नजदीक है। इसलिए 2-3 भाव बोला ना दादा भगवान ने, 2-3 भाव में आपका भरेला माल खाली हो जाएगा। मगर हम 5 आज्ञा का अंदर पालन करने का पक्का निश्चय करें तो। आप 5 आज्ञा कैसे पालते? जितनी आपकी 5 आज्ञा पालन करने की तीव्रता, निश्चय, इतना ही पालन करेंगे। बाकी तो आप संसार का सभी बिना निश्चय पहले करके आए हैं। बेटी को बड़ी करो, उसकी पढ़ाई करो, उसका रिश्ता अच्छा लड़का ढूंढो, अच्छा धंधा करो, वाइफ को अच्छा रखो, वो कुछ भी टकराव नहीं हुए, घर में शांति हुए, ऐसा आदर्श जीवन वो तो लेके आए। हम कोई अलग जीवन लेके आए, थोड़ा कम आदर्श जीवन लेके आए। मगर ये 5 आज्ञा का पालन ये अवतार में उसकी ज्ञान की सही समझ प्राप्त हुई है। तो अभी निश्चय कौन सा है? मोक्ष का नहीं, मोक्ष तो परिणाम है। अच्छा, ये 5 आज्ञा का पक्का निश्चय करेंगे तो मोक्ष परिणाम सिद्ध गति में जाने का, जाना नहीं है हमें सिद्ध गति में। हम पहले मोक्ष स्वरूप होना है। क्योंकि आदि व्याधि उपाधि में कोई गाली दे, तो कितना भी विपरीत संजोग आवे, मगर ये 5 आज्ञा हमें हाजिर रहे। 5 आज्ञा में सब आ गया। व्यवस्थित शक्ति करता है तो आदमी करता नहीं है। फाइल का संभाव से निकाल है, रिलेटिव रियल हम देखते हैं कि 5 आज्ञा में पूरा दादा भगवान का अक्रम विज्ञान का निचोड़ है, एसेंस उसका भार देते। तो 5 आज्ञा तो मोक्ष की करीब है, पुरुषार्थ का पाठ है। मगर हाँ वही पुरुषार्थ है, मोक्ष की करीब यानी कि नजदीक है। खाली ये 2-3 भाव यानी कि भरेला माल जो बोलते हैं ना, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार जो लेके आए हैं खपाने का, वो कर्म की दुकान है, वो खपा देने की, संभाव से निकाल करने का। ज्ञान मेरे के, 5 आज्ञा मेरे के। मोक्ष तो बहुत करीब है, नजदीक है, मगर हम टेढ़े हैं। क्या है? हम टेढ़े। मोक्ष तो सरल है, ज्ञानी पुरुष सरल है, अक्रम ज्ञान सरल है। मुआ अंदर वो टेढ़ा है, अहंकार को मुआ बोलते हम। ये अहंकार टेढ़ा है, वो मुआ अच्छी तरह से आज्ञा का पालन नहीं करने देता है। और सब वो भरेला माल जो लेके आए उसको मुआ बोलते, उसको डिस्चार्ज अहंकार बोलते। वो उसको पकड़ लेगा, रूट को उसको। भाई तेरी दानत कहाँ है? पैसा कमाने की और कुछ मान वैभव आसक्ति लालच पुजाने का? क्या है तेरी लालच? वो अहंकार को पूछना है, अपने खुद का अहंकार को, वो मुआ को पूछना है। तो ये दादा भगवान बोल ऐसा ज्ञान है कि भाई पूछो, भाई ये उसको बात करो कि तेरे को मोक्ष जाना है, कि भाई ये संसार में ऐसी चीज में भटकना है, संसारी चीज में ही सही सुख है। और लगता है बहुत अच्छा सुख है, मगर जाने के बाद दुख है। सुख आने के टाइम पे टेम्पररी सुख है, विनाशी सुख है। वो तो आपका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। पैसे में, कीर्ति में, मान में, प्रतिष्ठा में, स्त्री पुरुष के विषय में, जो भी सब्जेक्ट है दादा भगवान जो बताए, वो आते हैं पैसा तो अच्छा लगता है, और जाने के बाद दुख लगता है। उसको संभालने का, इनकम टैक्स न आवे, कोई सगे संबंधी थोड़ा 2-5 लाख 10-15 लाख दो तो भी दिक्कत है, हम दुख हो गए, वापस नहीं आएगा तो ऐसी सब चीज बात कैसी है कि भरेला माल वो और हमारा अनिश्चय, आज्ञा में रहने का पक्का निश्चय नहीं है, वो अंतराय है। सबसे बड़ा अंतराय कौन सा है अभी में?
ये जीवन में ज्ञान की प्राप्ति में। समझ में आया? अनिश्चय, आज्ञा पालन करने का अनिश्चय, वो सबसे बड़ा अंतराय है। अभी वाक्य आया था ना। हाँ, बोलो और कुछ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, दिल्ली। जी जय सच्चिदानंद दीपक जी। हाँ कश्यप भाई, बहुत टाइम से आप तो दर्शन दुर्लभ है, क्या बात है? बरेला माल। पहले तो बहुत केमन थी। अभी बरेला माल बोलने का नहीं है भाई, वो बोलने का नहीं है, समझने का है। समझने का, लेकिन हाँ, आपका बहुत अच्छा है अभी जो आपने बताया था। तो वो कभी भी वापरने का अपनी कचा से सत्संग में नहीं आ सकते है। अपना वो निश्चय है, आज्ञा नहीं पालन कर सकते तो बरेला माल नहीं बोलने का। नहीं, वो नहीं मैं बोल रहा था। मैं बोल रहा था आपने बताया ना बरेला माल की दुकान है, तो वही मैं बोल रहा था कि अपने को समझ में आया कि अपना ये बरेला माल है, वो अभी निकाल कर जो है। मैं तो बोला था कि आप सत्संग में पहले बहुत आते थे, अभी कम दिखाई देते, तो आपने बोला बरेला माल है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। की दुकान मैं बोल रहा था कि बरेला माल दुकान की जय सच्चिदानंद। हाँ, मगर आप कम दिखाई देते हैं सत्संग में। 2-3 साल से मैं दिखता नहीं हूँ। 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए। हाँ, अभी निश्चय और सही कर। हाँ, वो देख लेने का आपका कुछ निश्चय की कचास है। 50 है। हाँ, उसको दूर करना है। मैं तो भी ऑनलाइन पे सत्संग में आते हैं हिंदी भाषी में, वो सत्संगी है। जी। मगर आपका तो बड़ौदा में मकान भी है। अजय भाई संभाल रहे चालू में मुझे, और आते जाते थे बहुत। अभी कुछ अंतराय आ गया, आपका ही कुछ अंतराय पहले आपने डाला होगा। हाँ, 50 है उसमें। सबसे बड़ा अंतराय तो अनिश्चय। सही कह रहे हैं। हाँ, अभी सबसे आपने बड़ा बताया। अंतराय तो वो अंतराय तोड़ो ना निश्चय करके। हाँ, निश्चय वही करके आप तोड़ो। जाना है दादा भगवान का सत्संग कृपा हो। में, उनके ज्ञान में, उनकी ज्ञान विधि में, कीर्तन भक्ति में। अभी कीर्तन भक्ति तो चालू नहीं हुई, बस 2-3 महीने में, मार्च के अप्रैल में चालू हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो अपने भावना करने की। मैं जरूर से बोलिए। आप मुझे ये हरे पूछना है कृष्ण। आपसे। हाँ, बोलो। हाँ, ये ये है 2793। જેના आप आर्त ध्यान ने रौद्र ध्यान बंद થઈ ગયા તે एक अवतारी था। ये थोड़ा बता दीजिए। बराबर। ऐसे तो दादा के ज्ञान के बाद आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बंद हो जाता है। मैं कश्यप भाई हूँ, मैं करने वाला हूँ, तभी तक अहंकार है, तब तक आर्त ध्यान है। वो तो जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ज्ञान के बाद सब चला जाता है दादा भगवान की कृपा से। क्यों, कैसे चला जाता है? मुझे होता है, मैं क्रोध करने वाला हूँ, मैं राग करने वाला हूँ, मैं आर्त ध्यान करने वाला हूँ, मैं रौद्र ध्यान करने वाला हूँ। जब तक अहंकार है तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष होता है। अभी करने वाले आप नहीं है। वो जो कश्यप भाई का फाइल नंबर 1, उसको कुछ भी हुआ तो आप करने वाले नहीं है। आप ज्ञाता दृष्टा है कश्यप भाई का। जब अज्ञान दशा में ज्ञान, वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता है। रौद्र ध्यान यानी कि सामने वाले को क्रोध करना, दुखी करना। और आर्त ध्यान यानी कि अंतरदाह, खुद को दुखी करना, खुद को चिंता उपाधि करना। वो सब चिंता उपाधि मिट गई, आपको चिंता उपाधि होती नहीं है, रौद्र ध्यान होता नहीं है, आप तो शुद्ध आत्मा है। आपको 4 प्रकार के ध्यान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रहेगा। आपको 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
मैं मन वचन काया से अलग हूँ, ये शुक्ल ध्यान है। और धर्म ध्यान यानी कि हम 5 आज्ञा का पालन करते, असीम जयकार बोलते, विधि करते, वो सब धर्म ध्यान बोलते। जेना आर्थ ध्यान ने रौद्र ध्यान बंद થઈ ગયા તે એકાવતારી થાય। यानी कि एकावतारी यानी कि ज्ञान के बाद जो कुछ होता है अंदर, चुन चुन होता है, बाहर से कुछ भी होता है, वो सभी का एक एक का हम प्रतिक्रमण करके, सभी फाइलों का संभाव से निकाल करके कोई क्लेम बाकी नहीं रहता है। एकावतारी, एक अवतार अभी सिमंदर स्वामी के पास जाने का, और जाने का हम खुद जा नहीं थे, हम उधर एक क्षेत्र में वो 5 चौथा आरा के लायक हम हो जाएंगे तो हमें जाना नहीं पड़ेगा, वो क्षेत्र हमें खींच के उधर ले जाएगा। एक अवतार बाकी रहेगा, मगर पूरे के पूरा जो अभी डिस्चार्ज में है, अंदर भरेला माल में भी है, कुछ न कुछ अंदर होता है, होता है। मूड आर्त ध्यान हो गया, मगर अभी कौन सा रहा? भरेमाल रूपी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। वो नया बंध नहीं होता है, उसमें नया कर्म नहीं बनता है। ध्यान क्या होता है, थोड़ा अच्छे से मुझे समझ नहीं आया, ध्यान क्या मतलब होता है? ज्ञान यानी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, आपको ज्ञान हुआ कि नहीं? मैं कश्यप भाई से अलग हूँ, निर्लेप हूँ, अच्युत हूँ, अजन्म हूँ। मन वचन का है वो कश्यप भाई का है, मेरा नहीं है। वो कश्यप पड़ोसी है, फर्स्ट नेबर है। वो आपको ज्ञान हुआ कि नहीं? तो ये ज्ञान की परिभाषा समझने के बाद वो ज्ञान में, और वो ज्ञान का रक्षण के लिए 5 आज्ञा भी आप समझते हैं। पालन कम ज्यादा होगा बात अलग है, मगर समझ में तो आ गई नहीं 5 आज्ञा। हाँ, तो उससे ध्यान परिणाम स्वरूप बोलते हैं, मुझे ये थोड़ा समझाइए। ध्यान मतलब कैसा, क्या होता है ध्यान? परिणाम स्वरूप यानी कि दादा भगवान का एक भी वाक्य आपने पकड़ लिया, 5 आज्ञा में एक भी वाक्य पकड़ लिया कि रिलेटिव व्यू पॉइंट थी, पेड़ है, कुत्ता है, गाय है, गद्दा है, आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, चीटी है, और निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा है। वो दिव्य चक्षु आपने 2 पहली आज्ञा को समझ में तो आया ने? रौद्र ध्यान महात्मा को भी हो सकता है, मतलब जो है वो बरेला माल जो रौद्र, मूड रौद्र ध्यान आर्त ध्यान गया। मूड यानी कि आप शुद्धात्मा हो गए। कश्यप भाई तो रहे ने, कश्यप भाई का भरेला माल रहा ने, उसके हिसाब से आप बोल दे बेसिक में चला गया, मूड में रौद्र ध्यान चला। मैं कोई कश्यप भाई को गाली बोलेगे तो अंदर आपको चुन चुन नहीं होगा? थोड़ा होता है, थोड़ा भी अंदर हिल नहीं जाएगा आप? तो डिस्चार्ज में रहे। वो दादा भगवान का तो पूरे के पूरा खत्म हो गया, डिस्चार्ज में भी खत्म हो गया आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। आप चिड़चिड़ियापन नहीं हो जाते? कश्यप भाई पहले क्या, मैं चिड़चिड़ियापन, मुझे दुख होता है, वो निकल गया। अभी कश्यप भाई को होता है, वो भी निकलना है। अभी निकलता ही रहता नहीं है। जितने आज्ञा पालन करेंगे ने, अपने निकालने जावे तो नहीं निकलेगा। मगर ये दादा भगवान का जो वचन बल है, उनके वाक्य है, उनकी ज्ञान वाणी है, उनका 5 आज्ञा है, दादा भगवान की भक्ति है, कीर्तन भक्ति बहुत साधन है वो भरेला माल को माइल्ड करने का और निकालने के लिए। अपने आप तो कोई कैसे निकलेगा? तो ये रौद्र ध्यान जो है होता है, फाइल 1 को होता है, कश्यप को होता है, वो कैसे होता है? थोड़ा एग्जांपल बता सकते? एग्जाम्पल तो दिया, कश्यप भाई को गाली बोले कि कश्यप भाई का जो जो धंधा लेके बैठे उसमें कोई पैसा वो ले गया, तो आपको अंदर नहीं होगी थोड़ी बहुत चिंता? कश्यप भाई को होगी ना, आपको तो नहीं होगी, आप शुद्धात्मा है तो कश्यप भाई का मन बुद्धि और ऊंची नीचा नहीं होगा, अंदर जलन नहीं होगा? तो आर्त ध्यान हो, तो आर्त ध्यान मतलब खुद का जो खुद को जलाना, खुद को जलाना, खुद का जलाना। हाँ, और रौद्र ध्यान दूसरे को जलाना। को जलाना। अच्छा, रौद्र यानी कि बाहर का, आर्त यानी कि अंदर का। अच्छा। 2 प्रकार का दुख होता है। बाहर कोई गाली देवे, बाहर कुछ गलत करे
तो हमें असर होती है ना। हाँ, हम किसी को गाली दो, क्रोध करो, और हमें कोई सुना जाते हैं तो अंदर से चुन चुन होते हैं, और बाहर से भी होता है, बाहर से भी हम क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, हाँ, और अंदर से भी हम जलते हैं। जो हाँ, अंदर का रौद्र, आर्त आरे आर्त यानी कि अंदर का, रौद्र यानी कि बाहर का, मन वचन काया में जो दिखाई देता है, हमारा हाव भाव बिगड़ जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं, हमारा मुंह बिगड़ जाता है, हम कुछ दूसरे को सुना देते, वो बाहर का भाग को रौद्र ध्यान बोलते, रौद्र स्वरूप नहीं बोलते, रौद्र स्वरूप, हाँ। रौद्र स्वरूप धारण किया। मन में जो है गलत विचार आ जाते, वो भी रौद्र ध्यान में आएगा दूसरे का। हाँ, सब किसी को चीटिंग करने का विचार आवे ने, वो भी मन से, काया से और वाणी से, जो भी कुछ होता है दूसरे को चीटिंग करने का, गलत करने का, वो सभी रौद्र ध्यान है। तो खाली उसको बाहर दिखाता है। और आर्त ध्यान, सिर्फ आर्त ध्यान है कि आप कश्यप भाई को जलाना। इनका निकाल कैसे करने का से जो है ज्ञान से मतलब। होगा, करेगा तो डबल हो जाएगा। हाँ जी। आप निकाल खुद करने जावे ना बुद्धि से, अच्छा, तो बढ़ जाएगा। तो उसको इसको उसको क्या मतलब उसको उससे अलग रहने का जो है आप ये बोलते हैं, अलग नहीं, ज्ञान में रहने का, ज्ञान में रहने 5 आज्ञा में रहने का। क्या गया में रहने उसको कश्यप भाई को 5 आज्ञा में रहने का, हैंडल मारने का, पुरुषार्थ करने का। हैंडल मारने का यानी कि पुरुषार्थ करने का। मन में तो आए ने, सब विचार हैंडल आवे, हैंडल हैंडल प्रतिक्रमण करने का। हाँ जी, बट प्रतिक्रमण, दादा की भक्ति, दादा का ज्ञान, कोई भी वाक्य पकड़ लो, महात्मा की सेवा, सब आ जाता है उसमें। 5 आज्ञा तो मेन है। उसके अलावा तो ये सत्संग का माहौल चाहिए। दादा भगवान बोलते थे कि ज्ञान के बाद सत्संग का परिचय बहुत चाहिए, और सत्संग का परिचय से ही 5 आज्ञा की हम परीक्षा में पसार होते, और पास होने का ये सत्संग का ही माहौल चाहिए। 5 आज्ञा का जो पुरुषार्थ करना है, बिना सत्संग से, बिना दादा की भक्ति से, बिना चरण विधि से नहीं आता है। जी, सही बात। हाँ, नहीं तो भूल जाएंगे। 5 आज्ञा भी पालन करना आज किया कि नहीं किया, वो सोच में पड़ जाएंगे आप। 5 सब संसार की सभी चीज याद आएगी, क्योंकि हम लेके आए। कौन सी चीज लेके नहीं आए आप संसार की? मान, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी, सब सुख सगवड़, सब ये ठंडक वाली चीज लेके आए। हम जो ठंडक मानते हैं, हकीकत उसमें ठंडक नहीं है, संसार की विनाशी चीज वही लेके आए। ये ज्ञान लेके नहीं आए, 5 आज्ञा लेके नहीं आए, दादा की भक्ति लेके नहीं आए। तो सत्संग का ये मोल अभी पुरुषार्थ करना है, इसलिए उसको पुरुषार्थ बोला। प्रारब्ध तो लेके आए आप, ये प्रारब्ध कर्म लेके आए, प्रारब्ध कर्म वो सब लेके आए, पुरुषार्थ नहीं लेके आए। पुरुषार्थ तो बाद में प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति के बाद पुरुषार्थ की श्रेणी स्टार्ट हुई। अभी पुरुषार्थ धर्म दादा भगवान ने बताया। क्या बताया? हाँ, पुरुषार्थ धर्म। अभी ये इसी से संबंधित मैं आपसे मेरे दिमाग में आता है कि जैसे ये मतलब अनुभव में आता है कि जैसे हम ये विधि वगैरह करते हैं, तो उसमें जो है हमारे को नई इच्छा होती, फिर भी जो है ऐसे मतलब ऐसे नींद सा आने लगता है, जो ऐसे जो है मतलब इच्छा अंदर से इच्छा होती है कि ये ऐसे लगता है पता नहीं ये क्यों हो रहा है। तो लेकिन ये क्या इसका क्या करने का, ये थोड़ा पूछना चाहता हूँ उससे। क्या होता है? विधि करने की इच्छा नहीं होती है। इच्छा नहीं, वो उस टाइम थोड़ा सा जैसे झोंका सा आने लगता है, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, मुझे ऐसे समझ नहीं आता है, जो हमें है क्या ऐसे है, झोंका सा ऐसे लगता है। और फिर मैं मतलब ऐसे आंख बंद करता हूँ तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे झोंका सा आ रहा है, फिर आंख खोल लेता हूँ, फिर जो है फिर थोड़ा सा सही होता है, आँख खुली रख ऐसे के फिर करो, थोड़ा सा। आँख खुली रख के भी कर सकते। जब हाँ, थोड़ा सा। हाँ, मुंह धो दो, चाय पी लो,
हाँ थोड़ा हाँ ऐसे मालूम हाँ। ऐसे तो एडजस्ट क्या करने है, विधि में क्या है, चित्त की एकाग्रता होती है, मन की एकाग्रता, चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो हमें ठंडक होती है। तो ठंडक के वजह से हम नींद आ जाती है, हमेरी नींद हाँ आती है, वो उसका दिक्कत नहीं है, हमेरी भूल नहीं है। मगर जब ऐसे नींद आने की शुरुआत हो तो हमें मालूम पड़ जाएगा, तो हम मुंह धोगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े खड़े कर सकते, सब कुछ कर सकते। अच्छा तो जैसे हमें मालूम पड़े अपनी प्रकृति कहाँ कहाँ झोंका आती है, यानी नींद आती है, आलस आती है, प्रमाद आता है। क्योंकि अब मन वचन काय को तो विधि पसंद नहीं है, मन वचन काय तो घूमने जावे, शॉपिंग करने जावे तो नींद नहीं आएगी। देखना, शॉपिंग करने जाते हो दोपहर 2 से 4, हाँ दोपहर की नींद उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। क्योंकि वो ही पसंद है उनको। रात को पिक्चर देखना है तो 12 के बाद से 3 बजे तक आप मूवी देखेंगे, अगर इंटरेस्ट है तो मूवी में, हाँ इंटरेस्ट नहीं है तो चालू ही नहीं करेंगे। हाँ ये सब इंटरेस्ट की बात है। ये इसमें क्या है, सभी संसार के सभी चीज में हम इंटरेस्ट लेके आए, हमारा अंदर जो रस मन पसंद वही लेके आए हम, सही। ये लेके नहीं आए। उसको अभी पुरुषार्थ बोलना बताया, पुरुषार्थ बोला, उस टाइम फिर मैं इसलिए हैंडल दादाजी मारने। से वो आंख खोल के थोड़ा मतलब अंदर प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे जो है शक्ति दीजिए, मतलब विधि करने का, बिना नींद नहीं आए तो ऐसे जो है मतलब जो हाँ, मांगने का सही है बात, सही है वो बात। शक्ति मांग। वो वही अनिश्चय है ना, वही अनिश्चय है। हाँ इसलिए पक्का है दादा भगवान मेरे विधि करने में पक्का निश्चय हुए, ऐसी आप मुझे पर कृपा आशीष वर्षाना। ऐसे 100 बार बोलना पड़ता है, एक बार से नहीं होता है। अच्छा। बहुत कृपा आशीष मुझे बरसाओ मेरे लिए, ये हाँ हाँ, ऐसा बहुत बोलना पड़ता है। कई बार विधि में भी बोल सकते हैं ना, कई बार जैसे अब जैसे थोड़ा सा ऐसे लगने लगे तो थोड़ा विधि में ऐसे जो है शक्ति मांग सकते हैं बीच में बार बार। हाँ, विधि में तो क्या है, वो पहले उपाय करने का, कुछ भी नींद आवे, झोंका आवे, कोई दिक्कत नहीं है, वो उठ के सब कुछ इसको इलाज करना। हम गिर गए तो क्या बोलते हैं, अभी घर जाने का, बाहर जाने का बंद करेंगे, स्कूटर पे गिर गए कि पैदल चलते, उसके मलहम पट्टी करके फिर से घर जाते ना बाहर, घर बाहर जाने का बंद थोड़ी करते। तो कुछ भी ऐसे दिक्कत आ गई तो फिर से करने की, वो सेंटेंस दोबारा दोहराने का, रिपीट करने का, मगर विधि बंद नहीं करने की। जैसे हम बाहर जाने के अभी सोचेंगे, कुछ एक्सीडेंट होगा, हम गिर जाएंगे, कोई कुत्ता आ जाएगा, काव आ जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, एक बार मैं गिरा, अभी फिर से मैं जाने वाला हूँ, 1 साल तक मैं घर बैठूंगा, ऐसे सोचते हैं 1 वीक के लिए मैं घर बैठूंगा। हाँ, कुछ लगा और फ्रैक्चर हुआ तो घर कंपलसरी बैठना पड़ता है। अगर थोड़ा आप गिर गए और अच्छा हो गया फिर तो बाहर जाते हैं ना। सही सही। हाँ, तो डर के मारे आप घर थोड़ी बैठेंगे। ऐसे विधि में भी ऐसा होगा, मगर जो भी झोंका आ गया तो भी मुझे विधि बंद कर दूं, नींद आ गई तो मैं विधि बंद कर दूं, ऐसा नहीं करने का। विधि तो चालू ही रखने की। सही है। नींद आ गई तो दादा के क्षमा मांग लेने की, दादा भगवान आपकी विधि में मुझे नींद आ गई, मुझे क्षमा करना है। फिर से वही सेंटेंस 2 बार बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा, मगर मुझे माफी मांग लेने की, इलाज करने का। सही है। दादा भगवान बोलते आप गिर गए तो खड़े हो जाने का, कपड़ा भी चेंज करना, कादव कीचड़ का हो गया तो क्यों गिरा वो उसमें मत पड़ो, सही है। बस फिर से विधि चालू कर दो, शक्ति मांगो, प्रतिक्रमण करो। हे दादा भगवान मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, आज विधि नहीं हुई, मुझे क्षमा करो, मगर मेरा विधि करने का पक्का निश्चय और आपकी कृपा। दादा बोलते हैं कि तेरा निश्चय और मेरी कृपा 100% होगी, मगर तेरा निश्चय दब गया तो मेरी कृपा नहीं नहीं रहेगी। सभी बाबत में दादा भगवान बोला कि आपका निश्चय तो हम खड़े हैं, डाल जैसे हम खड़े हैं। जी सही हाँ, सही। हो गया। हाँ जी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, चलो, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, हमारा समय हो गया है। अब वैशाली जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। कश्यप जी आप। ओके ओके ओके। नमो वित्रागाय वित्रागाय नमो अरिहंताणं अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौव शाहुणं नमो लोये सहुनं ऐसो पंचरमुखारो ऐसो पंचकारो शौवपावपणासनो नवपावपनासनो मंगलानं च सौवेसी मङ्गलानं च सव्येति परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।